Hello everyone, how are you all? I hope you're doing good and fine. Today I'm gonna say about the further topic of organic chemistry, that is your polar compound, non-polar compound and inductive effect, and plus high effect and minus high effect in the inductive effect. Okay, so it is so simple. First we will go with the polar compound. Before going to the polar compound, let me share you some basic things. Okay, a little bit of basic thing. First of all, when we are considering hydrogen, suppose when we are considering hydrogen, it has one electron. I think everyone know 1 is 1, so it has one electron. Similarly, when we are considering chlorine, we are taking one electron of chlorine. Fine, this is called as electron. This is called as electron. Everyone know this, right? And this is called as atom. What it is called? Atom. Now, what do you mean by similar atom? If I'm taking this H and I'm taking this H, these are the similar atoms. If I'm taking chlorine and again chlorine, these are the similar atoms. And if I take H and Cl, this is the dissimilar atom, right? This is a dissimilar atom. If I take this is similar. This is similar. Yeah, getting my point? Now, what do you mean by polar compound? Means two electrons are exactly in the middle of two similar atoms. दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है अपने पास. देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है. ठीक है, दिस बिलोंग्स टू दिस बिलोंग्स टू दिस. Two electrons are exactly in the middle. They are at the middle position. Can you see it is at the middle position like this? This is here. This is at the exactly at the middle position. Getting my point? Exactly in the middle of two similar atoms. These are the two similar atoms. So it talking about the two electrons are exactly in the middle. Two electrons are exactly in the middle of two similar atoms. As simple as that. Now next, what do you mean by non-polar? Non-polar means, of course, they are not exactly not in the middle. Getting my point? They are nearer to electronegative atom. Now let us study about the non-polar compound. Okay, so this is the definition of two electrons. Again, two electrons are not exactly in the middle. They are not exactly. Where is the in polar compound? Where in the polar, the middle one, it is in the middle, right? This is not exactly in the middle, and they are nearer to more electronegative atom, and they are more nearer to electronegative atom. Now, what do you mean by electronegative atom? Electronegative atom means the tendency. Look at here. If I am taking chlorine here, okay, it is the electronegative atom. The tendency of an electron to gain the tendency of an atom to gain an electron towards itself. So what happened, what it does mean chlorine, it has a one electron and it also have one electron for bonding. So it should be at the middle, right? It should be at the exactly at the middle, but this case is not happening. This case is not happening at all. What happened? This chlorine is most electronegative. Getting my point? So what it is doing, he's taking the hydrogen one electron and the chlorine electron towards itself, more towards itself. This is called as electronegativity. Electronegativity or electronegative atom we can call. Getting my point? Look, two electrons are not exactly in the middle. They are not in the middle. Yes, can you see? Are they in the middle? No, right? This is more like chlorine type. They are nearer to more electronegative atom, like in the chlorine, like you can see in the HCl, right? HCl, yes. Let's see, chlorine has, of course, hydrogen has only one electron. It has only one electron. But let's see about the chlorine. Chlorine has 17 electron towards itself. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. Already he is very rich. He has lot of electrons. So due to this, he can gain one more electron towards itself, but not in the middle. Not exactly in the middle, but nearer to electronegative. This is nearer to electronegative. Getting my point? So here's the definition of electronegativity. The tendency to gain an electron. The gain of an electron pair towards itself is called electronegativity. Getting my point? It is as simple as that. Next,
लेट्स गो टू द इंडक्टिव इफेक्ट. गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नो डाउट्स. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क द डाउट्स. नाउ नेक्स्ट इज योर इंडक्टिव effect. Let's study your inductive effect. Now, before starting any inductive effect, I want you to imagine yourself as carbon. Of course, अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नो डाउट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है था पूरा कार्बन के बारे में, पूरा है था कार्बन के बारे में. तो आप कार्बन है समझ के इमेजिन कर लो, यू आर अ कार्बन, यू आर अ कार्बन. Imagine yourself like a carbon. Okay, so what happening means, और एक बात हो रही है यहाँ पे कार्बन के अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात हो रही है यहाँ पे. किसकी बात हो रही? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ये बहुत फेमिलियर होंगे आप वर्ड से, नेगेटिव है ना. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात हो रही. अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इमेजिन करें, यू पीपल शुड इमेजिन अ फोन, योर फोन एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. आप अपने फ़ोन को क्या करिए? इमेजिन करिए. क्या बोल के इमेजिन करते हैं आप? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल के इमेजिन करिए, तो आपको आसानी होती समझने में. ठीक है, ठीक है. देखिए, पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेनेशन में समझाती. द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ बॉन्ड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. क्या हो रहा बोले तो, जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पेयर का, ऑफ अ बॉन्ड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कार्बन चेन. देखो, अभी तो अपन पढ़े नॉन पोलर कंपाउंड, है ना. उसमें क्या हो रहा था नॉन पोलर कंपाउंड में? अभी अपन पढ़े नॉन पोलर कंपाउंड, और उसमें क्या हो रहा था बोले तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था. यहाँ पे हाइड्रोजन का या इसकी तरफ चला रहा था, नो डाउट ऐसा हो रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा? परमानेंटली हो जा रहा. समझ रहे हैं आप? परमानेंटली हो जा रहा बोले तो, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर है आप, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करें. इस अपने को मालूम ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन आता, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड पेयर करता, मिडिल में रहता. जो मिडिल में रहते उसको नॉन पोलर बोलते, इसको नॉन पोलर बोलते, राइट. फिर अपन जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं अपन. तो इंडक्टिव इफेक्ट में अपन क्या पढ़ें बोले तो, जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन पेयर का ऑफ अ बॉन्ड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. आप जो जाके फोन को चिपक जा रहे हैं परमानेंटली, इसको बोल रहे हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट. सिंपल. देखो, इमेजिन करो अपने आप को, आप फोन को जा रहे हैं और कितने देर, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3-4 घंटे आप लगातार परमानेंटली आप उसको क्या करें? चिपक जा रहे हैं. जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है आपका, आप कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन आपको जैसा फोन दिखा, रील्स, शॉर्ट्स, एवरीथिंग, स्नैपचैट, एवरीथिंग यू हैव स्टार्टेड, राइट. सो यू पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड यू आर गेटिंग परमानेंटली डिस्प्लेस. आप वहाँ पे चले जा रहे हैं, परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है आपका, आपके इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, देखो, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ बॉन्ड, जो बॉन्ड बना रहे थे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जो फोन है आपका जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कार्बन चेन, जो कार्बन चेन है, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. सिंपल चीज है, राइट. नाउ लेट्स सी अबाउट द एग्जाम्पल. ठीक है, ये कार्बन है, मतलब आप है, आपको हाइड्रोजन अच्छी चीजें अटैच है, नो डाउट. अब ये है आपका फोन, एक्स है. ये क्या है? एक्स भला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते इसको. तो देखो, माइनस नेगेटिव साइन भी डले हुआ है, पार्शियली नेगेटिव बोल के भी लिखे हुआ है. ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो इन क्या करा बोले तो, आपकी पूरी एनर्जी इन ले रहा, जो इलेक्ट्रॉन है ले रहा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उन क्या करा बोले तो ले रहा बोल के बोल रहे हैं, और पूरा बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जा रहा. इन द सेम वे आई थिंक यू कैन सी, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है का, ये पूरी कार्बन चेन है, राइट. यहाँ पे सिर्फ एक है, देखो, एक नेगेटिव एटम है. आप भी जाके उसको जो है नहीं, यू पीपल आर गेटिंग स्टक टू द फोन. फिर आपके बाजू वाले आपके भाई बहन भी आ जा रहे हैं, फिर आपके कजन्स भी आ जा रहे हैं, फिर आपके मम्मी भी आ जा रही हैं. मतलब ये इन क्या करा बोले तो, आपकी एनर्जी, आपके इलेक्ट्रॉन्स लेते जा रहा फोन. तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इन क्या करा बोले तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेते जा रहा. तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं. और इसको कैसा रिप्रेजेंट करते? मिडिल हेड एरो, मिडिल में एक एरो लगा देना. सिंपल सी बात है, आ रही बात समझ में?
मतलब आप इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, आप फ़ोन की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जा रहे हैं, इन आपको ले रहा, आपकी एनर्जी ले रहा। सिंपल। देखो फिर से लिखा हुआ है, कार्बन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। कार्बन किससे अटैच है, आप किससे अटैच है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हैलोजेंस। अपन आपको मालूम हैलोजेंस किसको बोलते हैं, हैलोजेंस किसको बोलते बोले तो जो पीरियोडिक टेबल तो मालूम ही होगा आप लोगों को। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी चीज़ आती है उसको हैलोजेंस बोलेंगे अपन। जिसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है इन लोगों को हैलोजेंस बोलते हैं अपन। इन लोगों का नाम है बेटा, आपका जैसा नाम है वैसे इन लोगों का भी नाम है, ठीक है। इन लोगों को हैलोजेंस बोलते हैं। अब देखो इन लोगों का क्लासिफाइड किस में है, 2 टाइप्स में है हैलोजेंस। सॉरी हैलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बोले तो 2 चीज़ों में क्लासिफाइड है, एक है प्लस आई इफेक्ट और एक है माइनस आई इफेक्ट। अब बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट क्या होता, माइनस आई इफेक्ट क्या होता, ये तो कंफ्यूजन दिख रहा। अभी तो आप सिंपल बोले थे, जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो जा रहा, सिंपल सी बात है, और परमानेंटली अटैच हो जा रहा, तो उसको अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे थे। लेकिन अब प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या है, बहुत मजेदार चीज है, आप देखो। लेट्स सी। सो जस्ट नाउ आई सेड अबाउट द माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस। देखो बुक को देख के डरो ना को, मेरी हैंड राइटिंग ही ऐसी है, ठीक है, नो वरीज। First of all, what we are speaking about, carbon is attached to more electronegative atom than hydrogen. Or a group or an atom or a group of atom molecules attached to carbon is ready to withdraw, gain, accept the electron towards itself is called minus I effect. इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। सो वॉट वी आर सीइंग मीन्स कार्बन है वो किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक है था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक है था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देखिए, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, माइनस डाल दे रही हूँ मैं, ठीक है, माइनस, और इसको मैं आपको फोन भी ड्रॉ कर दे रही हूँ, आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो आप किससे अटैच है, कार्बन किससे अटैच है, मतलब ये आप है कार्बन, आप किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, नहीं है, यस। सो कार्बन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बड़ा फोन, आईफोन ले लो आप, आईफोन 14 या फिर आईफोन जो क्या बोलते हैं प्लस, जो भी फ्लिप फोन है वो देख लीजिए आप। तो ये कार्बन किससे अटैच हो गया, आप किससे अटैच हो गए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आप क्या हो गए, अटैच हो गए बोल के बोलें, ठीक है। देखो कार्बन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन, सिंपल डेफिनेशन। या फिर और क्या लिख सकते हैं, अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल अटैच टू कार्बन इज रेडी टू गेन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो इन क्या करेंगे, ऑफकोर्स फोन का काम क्या है बेटे, अपनी एनर्जी ले लेना है, अपनी एनर्जी, अपना वक्त सब ले लेना है, राइट। तो इन क्या करा बोले तो विड्रॉ कर ले रहा, अपने पास से अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ले रहा, आप कन से आपकी एनर्जी ले रहा, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी आंखों की एनर्जी जो है आप पूरी आप किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब आपके फोन को दे रहे हैं, ठीक है। तो इन क्या करा, विड्रॉ करा, तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इट इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यू, इट इज टेकिंग योर एनर्जी फ्रॉम यू। देखो अब पढ़ो, आपको समझ में आ जाता। अ ग्रुप, अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल अटैच टू कार्बन, जो आपसे जुड़े हुआ है, ठीक है, इज रेडी टू विड्रॉ, गेन, एक्सेप्ट, आप कौन से ले रहा, गेन कर ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर ले रहा, द इलेक्ट्रॉन, क्या गेन कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन मतलब आपकी एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ ले रहा है एनर्जी। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। वैसे लोग कौन है, मैं बोली ना हैलोजेंस, बिल्कुल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऐसे जो है नहीं COH, ऐसे ग्रुप्स को अपन क्या बोले बोले तो OH, NO2, ये इसको क्या बोले अपन माइनस आई इफेक्ट है इन लोगों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है इन लोगों। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अल्लाह हाफिज हो जाएंगे अपन। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसका उल्टा ले लेंगे अपन, मतलब थोड़ा सा ऐसा, कार्बन इज अटैच्ड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहले अपन आईफोन का एग्जाम्पल ले लिए थे, राइट।
दैट आईफोन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल के ले लेते हैं, अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लो। मतलब डब्बा फ़ोन है आपके पास, जस्ट खाली व्हाट्सअप आता है, उसमें इंस्टाग्राम नहीं है, हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैन हाइड्रोजन, और एन एटम अटैच टू कार्बन, आपसे अटैच है वो, इज रेडी टू रिलीज और डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू कार्बन चेन। उन क्या करा बोले तो आपको कुछ दे रहा, जैसे कि मैं क्या बोली अभी व्हाट्सअप काम करा, तो व्हाट्सअप से आपको सीआर जो है नहीं नोट सेंड करें तो आप पढ़ रहे हैं, आपको टेस्ट पेपर सेंड करें, आपको इंटरनल के पेपर सेंड करें, तो आप उससे पढ़ के मार्क्स ला रहे हैं, तो उन आपको डोनेट कर रहा, आपको रिलीज कर रहा हूँ, जो बिल्कुल जो है नहीं छोटा सा फ़ोन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम फ़ोन है, मतलब कम पैसों का जो फ़ोन है ऐसा समझ लो आप, या फिर कम वैल्यू है उसकी मार्केट में, वो फ़ोन को अपन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं, और उन्हें आपको जो है ना बहुत चीज़ें दे रहा, जिसके व्हाट्सअप है उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करा तो रिलीज़ करा आपको, तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, जैसे कि है CH3 मिथाइल, फिर इथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, तो ये चीज़ें क्या करें आपको डोनेट करें। अब बोलेंगे आप मीथाइल कहीं को बोल रहे हैं इसको, कहीं को बोले तो CH4 तो मीथेन होता, अब इसमें से एक हाइड्रोजन में उड़ा दी तो CH3 हो जाएगा, तो मिथाइल हो जाएगा, सिंपल, यस। अब देखो 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, देखो मेथ एथ प्रॉप, इसलिए प्रॉप बोल के यूज हुआ यहाँ पे, आ रहा समझ में। अब 4 कार्बन से तो ब्यूट, देखो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, इसलिए ब्यूट बोल के यूज हो रहा है यहाँ पे, आ रही बात समझ में। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है मिथाइल, यहाँ पे कम है तो इथाइल, फिर ऐसा ऐसा बोल के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बोल के, ठीक है। आई होप you got my explanation. If you have any doubt you can comment down. I will instantly answer by my videos. Okay, thank you.